This is illustration number 18, students, in the case of hidden goodwill. So on the basis of the capital of the partner, we will be calculating goodwill. Let's see. We have in this illustration three partners, Amal, Vicky, and Chandu. This is Amal, Vicky, and Chandu. These are the three partners. Their ratio is 1:2:3. Who retires? Chandu retires from the firm. And his capital after making adjustments of means उसको gain of revaluation. वैसे तो ये टॉपिक पहले नहीं करवाना चाहिए क्योंकि revaluation उसने सिखाया नहीं होता. So it is the case that whenever a partner gets retirement from the firm, he will be getting his share of goodwill, he will be getting his share of reserve, he will be getting profit or loss on the revaluation. So उसने हमें adjusted capital दे रखी है यहाँ पे. चंदू को हमने कितना पैसा देना है भाई? 2,50,000 in full settlement of his claim. He's saying adjusted capital is 2,20,000. लेकिन अमाल और चंदू ने बोला वैसे तो उसका बन रहा है ये, उसको 220 मिलना चाहिए, लेकिन बाकी दोनों पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया? वी विल गिव हिम एक्स्ट्रा, वी विल गिव हिम 250. तो जितना ज्यादा आपके बाकी पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को देने के बारे में बोलते हैं, उन दोनों का डिफरेंस, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज टू चंदू. बट अमाल एंड विक्की डिसाइडेड दैट वी विल पे यू एक्सेस अमाउंट, that is 2,50,000. Why they are paying 30,000 in excess? That's why it is a case of goodwill. 30,000 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? 30,000 काहे के लिए दे रहे हैं? गुडविल के लिए. तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ? अमाउंट एग्रीड टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर. तो गुडविल किसके बराबर हुई? लेट मी राइट द फॉर्मूला हियर. हिडन गुडविल इन दिस केस इज अमाउंट टू बी पेड in full settlement minus adjusted capital of retiring party. जितना आपने full settlement में उसके साथ डिसाइड किया कि उसको पे करेंगे, उसमें से adjusted capital उसकी माइनस कर दो, एक्चुअल जो अमाउंट बनती है वो माइनस कर दीजिए. So in this case it will be 2,50,000 minus 2,20,000, so that comes to me 30,000. ठीक है जी, आपसे यही तो पूछा उसने. Pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill if the new profit sharing ratio is 1:3. तो गुडविल हम लोगों को देनी होती है किसको? रिटायरिंग पार्टनर को. इट इज ऑब्वियस है कि चंदू एंट्री में क्या होता है? क्रेडिट होता है, और गेनिंग पार्टनर्स एंट्री में क्या होंगे? डेबिट. तो यहाँ पे गेनिंग निकालने के लिए आई विल बी यूजिंग द न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो. लेट मी कैलकुलेट अमाल्स गेन, दैट इज 1/4 माइनस 1/6. चलिए फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड. I am calculating here Amal's gain 1/4 minus 1/6. This is 24. 6 minus 4, that is 2/24. What about Vicky's gain? That is 3/4 minus 2/6. So this is 24 once again. This is 6/18 minus 8. That is 10/24. Check करिए. 2:10, that is 1:5. So this is their gaining ratio, 1:5. Let's check from your book. Gaining ratio बिल्कुल ठीक है, matching with the book. अब एंट्री मैंने क्या सिखाई है? gaining partners are to be debited. Let's see the entry here. Who are the gaining partners? Or I should erase the above portion. यहाँ पे देखो एंट्री. जर्नल का छोटा सा फॉर्मेट बनाओगे और एंट्री एग्जामिनर को बता के आओ. Amal's capital account debited, Vicky's capital account debited to Chandu's capital. So it is dead sure Chandu is going to get 30,000, right? What entry I am passing? Amal's capital account debited, Vicky's capital account debited to Chandu's capital. इतना श्योर है कि चंदू को हम लोगों को 30,000 देना है. 30,000 का 1/6. 5,000 कौन देगा? अमाल. एंड 25,000 कौन देगा? विक्की. So being an adjustment entry passed for the distribution of goodwill at the time of retirement in the gaining ratio, right? So matching with the book, 5,000, 25,000. Till now what we have discussed,
Related to retirement, first case we discussed about gaining ratio, new ratio. Then second topic we discuss in this chapter, that is treatment of goodwill. Now very easy topic, already हमने admission में किया होता है, that is revaluation of assets and liabilities. I will directly be explaining this with the help of the account. Revaluation account कैसे बनाते हैं? If somebody asks from you what is the nature of revaluation account, so it is a nominal account. When do we prepare it? We do prepare it at the time of admission, retirement and even death. Death पे भी revaluation account बनता है, ठीक है? So any profit or loss at the time of retirement will go to all partners in the old ratio. Retiring partner अपने हिस्से का revaluation का profit or loss लेके जाता है भाई. Let's prepare it. Revaluation account. And the topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities. Revaluation account I'm going to prepare here. Same as of ledger, we prepare its format, particulars amount, debit side, credit side. This is for particulars. Then it's for amount. Then again on credit side, we have particulars and amounts, right? कुछ चीजें हम थोड़ी सी रिवाइज करते हैं. इफ एसेट इंक्रीजेस, एंट्री हुआ करती थी एसेट अकाउंट डेबिटेड टू revaluation account. I'm repeating, if asset is increasing, like value of the land increased by 10%, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी होगी लैंड की, उसका 10% कैलकुलेट करिए और लैंड को उतने से बढ़ा दीजिए. एंट्री बनेगी लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन. सो आई विल बी राइटिंग इट हियर बाय लैंड. मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड by 5%, so machinery comes down. एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी. मींस हमारा एक रूल बन गया, एसेट्स का बढ़ना क्रेडिट साइड पे आना है और एसेट्स का कम होना डेबिट साइड पे आना है. So whatever the amount will be there, you will be writing it in the amount column. Right? We purchase goods on credit and creditors of ₹50,000 still not paid. Means हमारी liability बढ़ गई. Liability का बढ़ना means revaluation account debited to creditors. Bill payable of ₹10,000 is now no longer to be paid. Means liability कम हो गई. BP account debited to revaluation by BP. ये सारी चीजें हम लोगों ने करी होती हैं भाई एडमिशन में. सेम फंडा we are following here. Then you will see what, which side is greater. If the credit side is greater, you will be getting the total and writing the same total on the debit side. And in that case, you will be having profit. And that profit you will be transferring to all partners' capital account. Profit to be transferred. मान लो मेरे पास 3 पार्टनर है, ए और बी की रिटायरमेंट हो रही है. बी भी लेके जाएगा अपना हिस्सा टू बी's capital and C's capital. In which ratio we will be dividing it? We will be using the old ratio. ठीक है, old ratio में हमारा प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन का डिवाइड होगा. If reverse happen, then there will be loss. So loss is also to be transferred to the capital account. यहाँ तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. By loss to be transferred. सेम लिखोगे टू A's capital, sorry यहाँ पे आएगा by A's capital, by B's capital, by C's capital. So like that way you will be proceeding, right? Revaluation में कुछ भी नई चीज हम लोगों ने नहीं सीखी, और everything we were doing in our admission also. चलिए अच्छी जर्नल एंट्रीज क्योंकि इंपॉर्टेंट रहती हैं इस चैप्टर में से. We will be discussing this illustration number 19 and he is asking from you past journal entries. 19th illustration, it's on page number 6.16. Let's see. 19th illustration, everyone. See your book. क्राइटेरिया सेम है. आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी और लेंथी क्वेश्चन मैक्सिमम 5 नंबर में ही आना है. आपसे जर्नल एंट्रीज पूछेगा. जब जर्नल एंट्रीज पे पूछेगा तो भी आपको रफ वर्क में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके प्रॉफिट और लॉस की भी तो आप जर्नल एंट्री करोगे ना. ठीक है. So this is 19th illustration on page number 6.16.
लेट्स रीड द स्टेटमेंट। बैलेंस शीट ऑफ, मेरे पास 3 पार्टनर्स हैं, Deepika, Jyotika and Alia. So women empowerment, all the 3 ladies, they are running this partnership. This is Deepika, is to Jyotika, is to Alia. 6th period we will be using for accountancy and that is our double period. Nobody will miss. ठीक है, मेरे को अगला टॉपिक करवा देना आपको, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। This is 5:3:2। जैसे मैंने बैलेंस शीट में देखा, सबसे पहले मेरी निगाह जाती है कहीं गुडविल तो डिवाइड करने को नहीं है। इफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मींस इन द बैलेंस शीट दैट इज टू बी रिटर्न ऑफ फर्स्टली। सो कुछ भी ऐसा नहीं है। ज्योतिका रिटायर, ज्योतिका इज डिसाइडिंग टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड हियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज दिस। कहीं पे गुडविल की कोई बात करी है? मेरे को गुडविल के लिए ही गेनिंग चाहिए होती है ना, तो गुडविल वगैरह है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो गेनिंग नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, अगर रिक्वायर्ड होगा तो वी विल सी, राइट। चलिए, अब पहली एडजस्टमेंट ही डिस्कस करने वाली है। ऑलरेडी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन चल रहा है। काहे का प्रोविजन? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। व्हाई डू आई क्रिएटेड दिस प्रोविजन? कि इन फ्यूचर अगर कोई बैड डेट्स होंगे तो मैं इस प्रोविजन को यूज कर लूंगी। आई हैव इन द क्वेश्चन फर्स्ट एडजस्टमेंट 1100 रुपया जो अब हमें नहीं मिलना, मीन्स वो हमारा बैड डेट है। तो इस बैड डेट को पहले मैं प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगी। देखना जरा एंट्री क्या होगी। फर्स्ट एंट्री, बैड डेट्स हुए, एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपको +1 की अकाउंटेंसी में भी सिखाया होता है फाइनल अकाउंट्स में दैट बैड डेट्स आर टू बी डिडक्टेड। दिस इज न्यू बैड डेट्स are to be deducted from debtors. So being a loss, it is to be debited because it is going to reduce my debtors. So that's why debtors are to be credited. कितने के हैं? 1100 के। डन। उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन में प्रोविजन है, 800 का प्रोविजन है और बैड डेट कितने के हैं? 1100 के। 800 तो प्रोविजन के अगेंस्ट क्या हो जाएंगे? एडजस्ट, और बाकी जो 300 रह जाएंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर। दिस इज नॉट ए न्यू एडजस्टमेंट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड for so many times in our admission chapter। ठीक है, अब बैड डेट्स को मेरे को ट्रांसफर करना है और प्रोविजन बनाया ही इसीलिए होता है कि कल को अगर बैड डेट्स होंगे तो उसका लॉस इसमें से कवर कर लेंगे। मेरे पास क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट है, दैट इज 800, बट you know I have bad debts more than the provision available, that is 1100. so how to complete this entry? डेबिट में मैंने 800 लिखा, क्रेडिट में मैंने कितना लिखा? 1100। जो 300 का डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग अ लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू बी डेबिटेड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट टू बी डेबिटेड, 2 बैड डेट्स। ठीक है, 800, 300 एंड 1100। यहां तक अगर किसी को पूछना है कुछ, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर क्वेरी। ठीक, यू कैन राइट योर क्वेरी इन माय चैट बॉक्स। आगे चलते हैं बेटे। यस, अब आगे सुनो। प्रोविजन फॉर, फिर से एक नई चीज है आपके लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। पहले एग्जिस्टिंग रेट का मतलब क्या है? एट प्रेजेंट मेरा प्रोविजन कितना है? 800 है ना। कितनी अमाउंट के पीछे? 16,000 के पीछे। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करके मैं इसकी परसेंटेज निकाल दी। ठीक, एट प्रेजेंट स्टूडेंट 5% है। 800 डिवाइडेड बाय माय ग्रॉस डेटर्स इनटू 100। I just calculated 5%, 16,000 का 5% करो तो काउंटर चेक भी हो जाता है, 800 आ रहा है। तो एट प्रेजेंट आपका प्रोविजन कितना है? 5%। कहता है रिटायरमेंट के बाद भी मैंने 5% ही रखना है, तो मैं कितना प्रोविजन और बनाऊंगी? लेट्स सी कैसे बनेगा। डेटर 16 के थे, बैड डेट कितने के हैं? 1100 के। 00, दिस इज 9 या 15, 14,900। 14,900 का मेरे को कितना बनाना है? 5%, क्योंकि अब आपके डेटर्स बचे ही इतने हैं। इसका 5% कैलकुलेट करिए। 45, 74, 745 you will be creating a new provision। दूसरी लाइन का मतलब ये है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द सेम रेट। पुराना प्रोविजन तो मैंने यूज कर लिया टू राइट ऑफ द बैड डेट, और कहता अब फिर से हमने प्रोविजन बनाना है। इस बार का प्रोविजन कैसे बनेगा? जो आपके पास डेटर्स है उसमें से पहले बैड डेट्स मैंने माइनस करे, नेट अमाउंट जो बची उसके ऊपर 5%। और मेरे को कहां से पता चला 5% है? बिकॉज ही सेज इज टू बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट। तो मैंने पुराने वाला परसेंटेज निकाल लिया। वो कैसे निकाला? प्रोविजन
divided by gross debtors into what 100, and that percentage comes to me 5%. That same percentage I apply to my net debtors, and this time it comes to me 475. एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन. जब नया प्रोविजन बनाते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे जाता है भाई. एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड. फिर से सेकंड वाली एडजस्टमेंट टिपिकल है, टू provision for bad debt, and that comes to me 745. Done. Narration book में से चेक करिए. Provision for doubtful debt created at the rate of 5% on 14,900 debtors. अगला सब कुछ आसान है. स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय. बाय का मतलब है उसी अमाउंट से. अगर 2 है तो डिफरेंस से हम करते हैं एंट्री रीवैल्यूएशन की. अगर बाय है तो उसी अमाउंट को आपको जर्नल एंट्री में लिखना होता है. स्टॉक को 1055 से कम कर देना. एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक. एसेट का कम होना, एसेट इज टू बी क्रेडिटेड टू स्टॉक. 1055 1055. आपको पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनाना है स्टूडेंट्स. बिल्डिंग इज टू बी रिटर्न बाय. रिटर्न अप बाय. अप मींस बढ़ा दो. बिल्डिंग को 11,000 से बढ़ा दो. जब कभी किसी एसेट को बढ़ाना है तो एसेट इज टू बी डेबिटेड इन द एंट्री. क्या एंट्री बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड to revaluation account. 11,000 से बढ़ा दिया. All the entries we are discussing in this question related to revaluation of assets and revaluation of liabilities. Liabilities के लिए usually we use a word in your book, reassessment of liabilities. Plant and machinery is to be reduced to 2. अब 2 वर्ड आ गया. Plant and machinery को कहता है 34,000 पे ले आना. I have to check कि प्लांट एंड मशीनरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले कितने की थी. इमीडिएटली आई सी माय बैलेंस शीट एंड इन द बैलेंस शीट इट इज अपीयरिंग ऑफ 35,000. ही सेज ब्रिंग इट टू 34,000. इट मींस कि 1,000 से मेरे को क्या करना है? कम. एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी with rupees 1,000. Whenever any asset is to be reduced, that asset is to be credited in the entry of revaluation. Yes. अगला भी मैंने अभी एग्जांपल में बताया था आपको. Sundry creditors of rupees 700 be written back as no longer payable. कहता अब क्रेडिटर्स 700 रुपए के हमें पे करने की जरूरत नहीं है. It means directly he is saying कि liability क्या हो गई है? कम. Whenever any liability comes down, we just debit it. Entry बनेगी creditors account debited to revaluation account. 700 के क्रेडिटर्स अब हमें पे करने की जरूरत नहीं है. तो एंट्री बनी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन. एक प्रोविजन बनाना है फॉर रिपेयर्स. व्हेनेवर वी क्रिएट एनी प्रोविजन वी जस्ट क्रेडिट इट इन द एंट्री. जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट किया था तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन for repairs. A specific reserve we are creating, that is 600. एक पुराना कंप्यूटर था जो ऑलरेडी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से खत्म कर चुके थे. was sold for rupees 2,000 as scrap. पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन. टू कंप्यूटर नहीं लिख सकते बिकॉज कंप्यूटर हैज ऑलरेडी बीन स्क्रैप्ड ऑफ. कंप्यूटर ऑलरेडी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से क्रेडिट कर चुके हैं जब उसे स्क्रैप किया था. ठीक है. तो जब कभी भी पैसा आता है किसी भी स्क्रैप आइटम का, वी पुट इट टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट. एंट्री बनेगी. ये भी किया होता है एडमिशन में हमने. एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000. Come to next. Firm had to pay 5,000 to an employee injured in an accident. एक लाइबिलिटी आपकी अराइज हो रही है भाई, so you have to pay. जब पैसा आता है तो बैंक इज टू बी डेबिटेड. जब आपको एक लाइबिलिटी पे करनी है, उस लाइबिलिटी का नाम नहीं दे रखा तो सिंपल एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. सबकी नरेशन भी लिखनी है आपको. लेट मी कंप्लीट द जर्नल एंट्रीज, देन आई विल बी डिस्कसिंग द नरेशन विद यू. ये नई चीज है आपके लिए. एक एम्प्लॉय की फैमिली को आपने उसकी इंजरी के लिए कॉम्पनसेशन देनी है. रीवैल्यूएशन टू बैंक. एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी थी जिसकी वैल्यूएशन हुई 10,000. अब रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ये भी एडमिशन में किया होता है. अनरिकॉर्डेड एसेट को कैसे रिकॉर्ड करना है. सी द बॉटम ऑफ द बोर्ड हियर.
मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, पहले वैल्यू कितनी थी मशीनरी की 0, एंड नाउ वी जस्ट वांट टू रिकॉर्ड इट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट मींस कि मशीनरी की वैल्यू को बढ़ाओ, ठीक है, एंड ही सेज इट इज ऑफ 10,000 नाउ, सो व्हाट एंट्री आई विल बी पासिंग, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू revaluation account, that is 10,000. Done? So with the help of these entry, अभी मेरी entries complete नहीं हुई, I will be preparing in my rough work my revaluation account. I will be calculating its profit or loss, then and that profit or loss I will be dividing between among all the 3 partners in their old ratio. So I don't require any time the new ratio in this equation. ठीक है, so revaluation की सारी entries मेरे को revaluation account में transfer करनी है. See, this portion of the board is visible. रफ वर्क में ही बनाना है, बस प्लस माइनस ही करेंगे, देखेंगे कौन सी आइटम डेबिट में आनी है, कौन सी क्रेडिट में. पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं है, दूसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन है, तो मैंने 300 डेबिट में लिख दिया, 745 भी डेबिट में, 1055 भी डेबिट में. ये बिल्डिंग बड़ी थी, ये 11,000 बिल्डिंग आएगा. देन रिवैल्यूएशन टू प्लांट फिर से 1000 डेबिट में, क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन 700 क्रेडिट साइड पे, देन प्रोविजन फॉर रिपेयर डेबिट में, बैंक टू रिवैल्यूएशन बाय वाली साइड पे, रिवैल्यूएशन टू बैंक 5,000, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन दैट इज 10,000. So this side seems to be greater student. Credit side बड़ी लग रही है, 10 और 2 12, 12 और 11 23, 23,700. इस साइड पे देखते हैं 56 66 66 और 76 76 और 11 87. चेक करो आंसर 0 0 0. दिस इज 15,000. मेरे हिसाब से 15,000 प्रॉफिट है. यस, बिल्कुल ठीक है, मैचिंग विद द बुक. So 15,000 I will be dividing in which ratio? 5 by 10, half हो गया 7,500, 3 by 10 4,500, 2 by 10 3,000. तो एंट्री क्या बनी? Revaluation account debited to Deepika's capital, to Jyotika's capital, to Alia's capital. That is 15,000 पहले को मिला, 7,500 to Deepika's capital, then 4,500 to Jyotika's capital, then 3,000 to Alia's capital. So same he wrote. Being profit on revaluation transfer to the capital accounts in the older ratio, that is 5:3:2. सारी एंट्रीज मैंने लिखी हैं. नरेशन जरा डिस्कस करिए. Being bad debts occurred, ठीक है. Being अगले का देखो, सेकंड का, balance in bad debt account transferred to revaluation account. Being balance in bad debts account transferred to revaluation account. Being a new provision created at the rate of 5%. Being value of stock decreased, being value of building increased. ठीक है, मेरे को एंट्री पढ़ के ही पता चल रहा है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है. Being value of plant and machinery decreased, being creditors decreased, being a new provision for repairs created. ये बैंक टू रिवैल्यूएशन क्या था? Being a computer already declared as scrap sold, ठीक है. Being compensation paid to an injured employee, being an unrecorded machinery now recorded in the books of accounts. ठीक है, और उसके बाद आपको ये ट्रांसफर एंट्री करके आनी है. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो आपने सारे पार्टनर्स में, और उसने पूछा भी था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ. आई तो कंसिडर्ड इट इज अ पार्ट ऑफ रफ वर्क, लेकिन अगर वो अलग से पूछता है तो यू हैव टू प्रिपेयर इट. ठीक है, और लास्ट एंट्री आपकी बाद में ही होगी. अगला टॉपिक भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने किया होता है, when he himself says that the value of assets and liabilities is not to be changed. तो हमने नेट इफेक्ट ढूंढना होता है. तो नेट इफेक्ट के लिए आपको सिखाया हुआ है एसेट का बढ़ना मेरे लिए प्लस रहेगा, एसेट का कम होना मेरे लिए माइनस रहेगा, लायबिलिटी का बढ़ना माइनस रहेगा, लायबिलिटी का कम होना प्लस रहेगा. ठीक है, तो इस तरह से नेट इफेक्ट हम लोग निकाला करते थे. उस नेट इफेक्ट की एंट्री बिल्कुल गुडविल की तरह करनी है. Gaining partners are to be debited and the retiring partner, यहाँ पे sacrificing नहीं होगा, retiring partner is to be credited. Let's do one example on page number 6.19. उसने theory में जब हमें topic समझाया वहीं पे net effect वाला portion समझा दिया. So we will be discussing that example only. Amit, Sumit and Jatin, we have 3 partners. ठीक है, when they decide not to change the value of assets and liabilities, they just want to record this change only with the help of an adjustment entry, a single entry he wants.
मतलब इतनी सारी वो कहता है रीवैल्यूएशन की मेरे को एंट्री नहीं करनी, नेट इफेक्ट मेरे को पता करना है और उसी की एक एंट्री करनी है, ठीक है। ये हम लोगों ने टॉपिक किया हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में भी और एडमिशन के चैप्टर में भी। तो सेम क्राइटेरिया आई एम गोइंग टू फॉलो हियर। लेट्स सी। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। एसेट्स का बढ़ना हमेशा मेरे लिए फायदा है, इसलिए पॉजिटिव कर देना। एसेट का कम होना हमेशा मेरे लिए नुकसान है, इसलिए माइनस कर देना। लायबिलिटी का बढ़ना हमेशा मेरे लिए क्या है, नुकसान है, इसलिए माइनस कर देना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑन रीवैल्यूएशन लिख लीजिए। Let's read. Before I proceed, I must write who are my partners, what is their profit sharing ratio. Let me write it here. I have three partners in the question. Amit is to Sumit is to Jatin. That is 5:3:2. Jatin retired this time from the firm. और अमित और सुमित ने डिसाइड किया 1:1 में हमारी रेशियो होगी। अब क्योंकि ये क्वेश्चन नेट इफेक्ट का है, गेनिंग रेशियो मेरे को चाहिए ही होगी, तो मैं पहले गेनिंग रेशियो निकालूंगी। लेट मी कैलकुलेट अमित्स गेन हियर। दिस इज न्यू रेशियो, दिस इज ओल्ड रेशियो। अमित्स गेन मेरे को लगता है सेम रहेगा, 1/2 माइनस 5/10, वो भी 1/2 1 है। इट मीन्स कि सारा गेन किसको हुआ, सारी कॉम्पनसेशन कौन देगा, सुमित। मेरे को एंट्री पहले से पता चल गई, एंट्री होगी सुमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जतिन्स कैपिटल एंड दैट सेम एंट्री ही हैज पास्ड। अब निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, बिकॉज ही इज एट अ न्यूट्रल पोजीशन, सो होल ऑफ द कॉम्पनसेशन हु इज गिविंग टू whom, Sumit is going to give to Jatin because Jatin is retiring from the firm. Am I clear to everyone? चलिए जी, now I have to compare। और मेरे को कहां से पता चला कि ये नेट इफेक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि उसने एक लाइन लिखी होती है, they decided to record the effect of the following revaluations without affecting the book values of assets and liabilities by passing an adjustment entry. Means assets की वैल्यू और liabilities की वैल्यू बैलेंस शीट में चेंज नहीं करनी, हम लोगों को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इसके इफेक्ट को शो करना है, ठीक। सो व्हेन आई सी लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख से कितनी हो गई, रिवाइज्ड वैल्यू 5.5 लाख, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, एड इंक्रीज इन बिल्डिंग। बिल्डिंग का बढ़ना हमेशा मेरे लिए क्या है, फायदा है, सो दैट आई विल बी राइटिंग विदाउट ब्रैकेट। अब थोड़ा थोड़ा आपका रिकॉल हो रहा होगा, जब माइनस होता है तो हम इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखा करते थे, बिकॉज दैट इज आवर लॉस। प्लांट एंड मशीनरी 250 से कम होके कितनी हो गई, 240, तो नेगेटिव वाले में हमेशा रिकमेंड करती हूँ नीचे लिखिए माइनस। डिक्रीज in plant and machinery, and this amount I will be writing in small bracket because it is a negative figure. Yes, liabilities का कम होना हमारे लिए क्या है, मीन्स हमने पेमेंट कर दी है, आउटफ्लो ऑफ कैश है। डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी का कम होना हमारे लिए प्लस लिखा है इसने, लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए क्या है, प्लस है, क्योंकि एंट्री हम लोग किया करते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स या टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और लाइबिलिटी का कम होना, इसने गलत नहीं किया दोनों, देखना जरा इधर क्या किया हुआ है इसने, एड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज का कम होना हमारा फायदा है और लाइबिलिटीज का बढ़ना हमारा नुकसान है। हाँ याद करो फिर, एसेट का बढ़ना हमारा क्या है, फायदा है, लाइबिलिटी का बढ़ना हमारा नुकसान है। रिवर्स चलेगा, इंक्रीज इन बिल्डिंग इज आवर इनकम, बैठे बैठाए हमारी वैल्यू बढ़ गई, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा नुकसान होगा, ठीक है। तो अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, सो दैट इज अ बेनिफिट टू अस। ऐड करना है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, दैट इज 5000। एसेट का अगर आपको याद हो जाता है ना, तो लाइबिलिटी का रिवर्स है। लाइक एसेट का बढ़ना अगर मेरे लिए फायदा है, तो लाइबिलिटी का कम होना मेरे लिए फायदा है। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 से क्या हुए हैं, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी का बढ़ना इज अ लॉस टू अस,
ऊपर टोटल बना स्टूडेंट्स 55,000 और इसका टोटल बना 25,000. सो माय नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव व्हिच वी कॉल प्रॉफिट. इसे प्रॉफिट बोलेंगे. 30,000 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है. हु इज गोइंग टू कंपनसेट टू whom? दैट इज सुमित. एंट्री क्या बनेगी? सुमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जैन्स कैपिटल और जतिन्स कैपिटल. जतिन्स कैपिटल. ठीक है जी. अब 30,000 हमारा प्रॉफिट है. मेरे को किसका गेन निकालना है? सुमित का गेन. सुमित का गेन कितना आ रहा है? करना ही पड़ेगा, मैंने तब छोड़ दिया था. सुमित का गेन कितना आएगा? 1/2 माइनस 3/6 नहीं 3/10. 10 एलसीएम. दिस इज 5. 10 minus 3. So it comes to me 1/2 minus 3/10. 10 LCM. This is 5 now. 2/10. ठीक है. 2/10 को गेन से मल्टीप्लाई करो. 30,000 का 2/10 that comes to me 6,000. 30,000 से मत एंट्री पास करने बैठना. अपने गेनिंग से क्या करना है? उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है. At the two partners will be gaining, तो आपने दोनों के शेयर के साथ उसे क्या करना था? मल्टीप्लाई. Then only you will come to know कि जतिन means retiring partner को कितनी compensation देनी है. Being an adjustment entry pass for net effect of revaluation. बस इतना ही narration लिखना है. So now we have the next topic whereby we have to distribute the available reserves in surpluses to my retiring partner. For example, जब आप admission का question करते थे, general reserve was appearing in the books of accounts. So that you used to write off. Entry हुआ करती थी general reserve account debited to old partners in their old ratio. यहाँ पे होगा to all partners in their old ratio. Similarly, we will be having workman compensation reserve. जितना उसके अगेंस्ट क्लेम है उसे एडजस्ट कर लीजिए. जो बच गया है सारे पार्टनर्स में, मतलब रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा लेके जाएगा. सिमिलरली IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो पुराने पार्टनर्स में एडमिशन में पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में डिवाइड करते थे. यहाँ पे सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना. मींस अब मेन फंडा क्या है? द रिटायरिंग पार्टनर वांट्स शेयर इन एवरीथिंग. he is having a like fact with him. Whatever has been invested, whatever has been created in the form of reserve, that has been created from profit, and at the time I forego that profit. मैंने उस प्रॉफिट में से अपना हिस्सा छोड़ा था, तभी रिजर्व बने थे. Now I am leaving the firm, I should get my share out of it. So every type of reserve is to be distributed between all the partners in their old ratio. So this topic we are going to pick in our sixth period. From today's lecture, if you are having any doubt, you can ask. Yes, students. You want to ask anything? किसी को कोई doubt है?